Namaskar. In this video, we will deal the concept of treatment of guarantee. This is the topic of chapter number 2, partnership accounts, 12th class. There is two type of guarantees being dealt in this video: guarantee to a partner from another partner, and second, guarantee by a partner to the firm. Right? Let's deal with this. Meaning of guarantee. Guarantee means confirmation or assurance to compensate if a set event happen. जिस सिचुएशन के लिए गारंटी दी जाती है, गारंटी देने वाला ये अंडरटेक करता है कि वो उस सिचुएशन में होने वाले लॉस को कंपनसेट करेगा. लेट्स सी द एग्जांपल ऑफ दीज टू. A is guaranteed by B and C that his share will not be less than 20,000. यहाँ B और C ने A को गारंटी दी है. B और C ने A को गारंटी दी है कि उसका हिस्सा 20,000 से कम नहीं होगा. This is a case of guarantee to a partner by another partner. Another situation, Ritika has guaranteed her firm that she will generate at least rupees 5 lakh sale during the year. It is a type of guarantee where a partner, Ritika, giving guarantee to the firm that she will generate at least 5 lakh. Case of guarantee by a partner to firm. Right? Guarantee to a partner. There are situations. Number one, a partner is guaranteed by remaining partner, but the ratio of guarantee is not given. This is the first situation. एक पार्टनर को गारंटी दी गई है, लेकिन किस रेशियो में गारंटी दी है ये नहीं दे रखा है. सेकेंड, पार्टनर इज गारंटेड बाय रिमेनिंग पार्टनर एंड द रेशियो इज ऑल्सो गिवन. दैट इज सेकेंड सिचुएशन. थर्ड, पार्टनर इज गारंटेड बाय एनी वन ऑफ द पार्टनर, एनी वन ऑफ द रिमेनिंग पार्टनर. तीन सिचुएशन है. मान लिया एक फर्म में 3 पार्टनर हैं और ए बी सी. ए को गारंटी दे रखी है बी सी ने, रेशो नहीं दे रखा. दैट इज फर्स्ट सिचुएशन. सेकंड, ए को गारंटी दे रखी है बी और सी ने और बोल रखा है बी एंड सी इज गिविंग गारंटी इन 3:2, रेशो गिवन है. थर्ड सिचुएशन, देर आर 3 पार्टनर ए बी सी where A is guaranteed by C only, then the whole burden of the guarantee will goes on the C only. Right? And guarantee by a partner to the firm. We will deal some example, numerical example. First, 3 situations of the guarantee to a partner. Let's see this question. In this question, we have Aman, Nitika and Sejal are 3 partners in a firm with capitals 3 lakh, 2,50,000 and 2 lakh respectively. अमन की कैपिटल 3 लाख, नितिका की कैपिटल 2,50,000 और सेजल की कैपिटल 2 लाख. और उनकी पार्टनरशिप डीड में कंडीशंस हैं. फर्स्ट, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10% per annum. Here we need to note that interest on capital, rate of interest is given with time tag. Right? Salary to Aman 5,000 per month. Note it. Interest on drawing of partners at the rate 12%. Interest on drawing, the rate of interest is 12% and it is without the sign of without the time tag. Right? Commission to Nitika at 10% per annum of net profit. Right? This is our special condition which we need to deal. Aman and Nitika have given guarantee to Sejal that her share of profit will not be less than 30,000. We need to note that there are 3 partner, Aman, Sejal, और अमन और नितिका ने गारंटी दी है सेजल को कि उसका शेयर 30,000 रुपये से कम नहीं होगा. और यहाँ पे इस क्वेश्चन में उनका गारंटी रेशियो नहीं दिया गया है. इज दैट क्लियर? Guarantee ratio is not given. That we need to note. Guarantee ratio, first
Partner is guaranteed by remaining partner, but ratio of guarantee is not given, right? Profit sharing ratio will be 5:3:2. Now, their firm generated net profit of rupees 2,50,000 and their annual drawings were 20,000, 30,000, 50,000 respectively. We need to prepare P&L appropriation account for this situation. क्या करना है हमें? First of all, we will transfer this net profit to the credit side of P&L appropriation account. P&L appropriation account के क्रेडिट साइड में ट्रांसफर कर देंगे प्रॉफिट को एंड द अमाउंट ऑफ प्रॉफिट इज गिवन 2,50,000. क्लियर? नेक्स्ट, लेट्स डील इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10% per annum. We need to calculate interest on 3 partners. अमन, कैपिटल इसकी 3 लाख है, 10% इंटरेस्ट निकालेंगे, अमाउंट विल बी 30,000. नाउ द कैपिटल ऑफ नितिका इज 2,50,000, 10% इंटरेस्ट निकालेंगे इसका 25,000, सॉरी 25,000. सेजल, her capital is 2 lakh and the interest will be 10% of this 20,000, right? And the total interest of these 3 partners is 75,000, right? Now, salary to Aman is rupees 5,000 per month. We are preparing P&L appropriation account at the end of the year, so we need to deal सैलरी फॉर द होल ईयर. एक महीने की सैलरी अमन की दे रखी है आपको, दैट इज 5,000 एंड द होल ईयर सैलरी विल बी 60,000. 60,000 रुपया सैलरी अमन का. इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग ऑफ द पार्टनर इज 12%. There is no time tax, so we simply calculate interest over these amount with ignoring the time. So we need to adjust interest on capital, interest on drawing for 3 partners, and the amount will be 2,400. 20,000 अमन की ड्राइंग है, 12% हमें निकालना है, 2,400. And Nitika, her drawing is 30,000, 12%, 36,000. We are calculating direct with ignoring the time because interest rate of drawing is given without time tag. It is 6,000. Sejal, and the total drawing of interest on drawing of these 3 partners is 12,000, right? Now, commission to Nitika 10% on net profit. So commission, we need to pay commission to Nitika at the 10% on net profit. That is net profit is 2,50,000 given. इसका 10% उसको पे करना हमें, that will be 20,000, sorry 25,000. Okay, so we have completed all terms condition except this guarantee condition. Students, you need to note, जिस भी क्वेश्चन में गारंटी की कंसेप्ट दे रखी हो तो आपको गारंटी वाली कंसेप्ट को छोड़ के बाकी कंसेप्ट को सिंपली डील कर देना है. उसके बाद यू नीड टू कैलकुलेट डिविजिबल प्रॉफिट ऑफ दिस फर्म. डिविजिबल प्रॉफिट कैलकुलेट करना आपको. टोटल 2,62,000, 2,62,000, and that amount is to be transferred, shifted there. 2,62,000 माइनस करेंगे तो आपका डिविजिबल प्रॉफिट इट विल बी 1,02,000. 1,02,000. Now this profit is to be distributed among the partners under the condition of this guarantee.
गारंटी कंडीशन को ध्यान में रख के आपको ये प्रॉफिट 1,02,000 डिस्ट्रीब्यूट करना है। यू नीड टू नोट द कंसेप्ट ऑफ गारंटी इज एक्चुअली ओन डिविजिबल प्रॉफिट। डिविजिबल प्रॉफिट तक आपको क्वेश्चन को सीधा फॉलो करना है और उसके बाद यू नीड टू गो टू प्रिपेयर अ स्टेटमेंट इन योर वर्किंग नोट एज वी आर गोइंग टू प्रिपेयर हियर। स्टेटमेंट फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट, हमें 1,02,000 गारंटी में डिस्ट्रीब्यूट करना है। इसमें हम क्या करेंगे, पहले प्रॉफिट को उनके रेशो में जैसे डिस्ट्रीब्यूट होता है वैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। मींस शेयर ऑफ प्रॉफिट इज टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग देम in their regular profit sharing ratio, and that ratio is 5:3:2. So we are going to distribute this profit among these three partners in their set ratio, and the amount will be 51,000 for Aman, and 30,600 for Nitika. And for Sejal, this amount will be 20,400. हमने क्या किया है, we simply distributed the divisible profit firstly in their regular ratio, that is 5:3:2 given in the question. हमने इस रेशियो में इसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। Now we need to see whether the share of the partner who is being guaranteed is less than the guarantee or more than the guarantee. उसको गारंटी दी है 30,000 के लिए, यस, और उसका शेयर कितना बन रहा है 20,400। मतलब अमन एंड नितिका जिसने भी उसको गारंटी दी है, दे नीड टू कंपनसेट फॉर दिस डेफिशिएंसी। हमें यह पता है कि तीनों पार्टनर में से जिसको गारंटी दी गई है उसका शेयर आफ्टर एडजस्टमेंट दैट अमाउंट विल बी 30,000, दैट मस्ट बी 30,000, राइट। तो जो डेफिशिएंसी है वो डेफिशिएंसी कितनी बन रही है यहां पे, दैट डेफिशिएंसी इज 9,600। ये 9,600 that deficiency is to be compensated by Aman and Nitika, but ratio is not given। अगर रेशियो नहीं दे रखा तो हम उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो को पकड़ेंगे और 5:3 अमन और नितिका का जो रेशियो है 5:3, इस रेशियो में इस अमाउंट को अमन और नितिका से कंपनसेट करवाएंगे सेजल के लिए। मतलब दिस अमाउंट एडजस्टमेंट अमाउंट बैलेंसिंग फिगर जो सेजल को मिलेगी 9600, देगा इसको कौन, अमन और नितिका पे करेंगे सेजल को इन 5:3 में पे करेंगे, एंड द पेमेंट अमाउंट विल बी 6,012, ठीक है, 6,000 that will be compensated by Aman, and 3,600 this amount will be compensated by Nitika, and now their adjusted share of profit will be 45,000 of Aman and 27,000 is of Nitika। अब ये अमाउंट हमारी एग्जैक्ट अमाउंट है विच इज टू बी शोन इन, वी नीड टू शो दीज अमाउंट इन P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। 45,000 हम दिखाएंगे अमन को और 27,000 रुपया दिखाएंगे हम नितिका को, और सेजल का गारंटेड शेयर ऑफ 30,000। This will be the set of appropriation P&L appropriation account। ऐसे हम P&L appropriation account prepare करेंगे for these three partners। I hope you are able to understand this।
गारंटीड शेयर को फॉलो करना है। अभी हमने सिर्फ सिचुएशन एक सोल्व करी है और वो हमारी सिचुएशन क्या थी? फर्स्ट सिचुएशन, अ पार्टनर इज गारंटीड बाय रिमेनिंग पार्टनर बट द रेशियो इज नॉट गिवन। इन दिस सिचुएशन वेयर रेशियो इज नॉट गिवन, देन वी विल प्रिज्यूम दैट remaining partner will has guaranteed in their existing profit sharing ratio। हम ये मान के चलेंगे अगर रेशो नहीं दे रखी तो जिन्होंने गारंटी दी है उनके शेयर ऑफ प्रॉफिट से हम उनका गारंटी रेशो बनाएंगे और उसी में उसको डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। दैट इज द फर्स्ट सिचुएशन। नाउ सेकंड सिचुएशन ऑफ दिस क्वेश्चन इज a partner is guaranteed by remaining partner and the ratio for the guarantee is given। अब मान लेते हैं कि रेशियो दे रखा है और यहां पे लिखा है have given equal guarantee, equal guarantee टू सेजल। अब 30,000 रुपए की जो गारंटी है वो अमन और नितिका ने इक्वली दी है, मतलब अब जो भी डेफिशिएंसी है दैट इज 9600, ये डेफिशिएंसी अमन और नितिका इक्वली कंपनसेट करेंगे। अगर इक्वली कंपनसेट करेंगे तो फिर ये अमाउंट 6000 की बजाय बनेगी 4800, 4800। और अब चूंकि इक्वल है तो नितिका भी इसी रेशो में अमाउंट पे करेगी 4800 और उनकी जो ये अमाउंट है रिमेनिंग अमाउंट विल बी 46,200 फॉर अमन एंड फॉर नितिका दिस अमाउंट विल बी 25,800, राइट। और उसकी अमाउंट 30,000 ही रहेगी। ये सेकंड सिचुएशन बनाई है हमने जब अमन और नितिका का गारंटी रेशियो दे रखा है कि वो इक्वली कंपनसेट करेंगे सेजल को अगर डेफिशिएंसी है तो डेफिशिएंसी यहाँ पे 9600 की बन रही थी, अब उसको कंपनसेट करेंगे इक्वली। 4800 अमन सेक्रीफाई करेगा और 4800 रुपया नितिका सेक्रीफाई करेगी। अब ये अमाउंट हमें यहां पे एंटर करने हैं 46,200 फॉर अमन एंड फॉर नितिका द अमाउंट विल बी 25,800। सेजल का 30,000 ही रहेगा। इज दैट क्लियर? That is our second situation where ratio is given. Partner has given guarantee and ratio is given, and that ratio in our example is equal, 1:1. Now we will deal third situation where partner is guaranteed by any one of the partner। मतलब अभी तक हम क्या मान के चले थे कि अमन और नितिका दोनों ने गारंटी दी है। पहली सिचुएशन थी रेशो नहीं दे रखा था तो हमने उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशो से रेशो बना लिया। दूसरी सिचुएशन थी कि वो इक्वली गारंटी दे रखी थी, मतलब रेशो गिवन था। अब सिचुएशन क्या है कि इनमें से किसी एक ने गारंटी दे रखी है। वी आर डिलीटिंग दिस इक्वल गारंटी। नाउ सपोज ओनली अमन has given guarantee to Sejal that her share will not be less than 30,000। अब सिर्फ अमन ने गारंटी दे रखी है। अगर सिर्फ अमन ने गारंटी दे रखी है तो इसका मतलब ये हुआ कि सिर्फ अमन ही कंपनसेट करेगा, यानी कि अगर गारंटी अमन ने दी है तो अमन सेक्रीफाई करेगा 9600। टोटल अमाउंट इज टू बी बोर्न बाय अमन। और इस केस में नितिका कोई अमाउंट सेक्रीफाई नहीं करेगी, तो यहां पे नितिका की जो अमाउंट आएगी दैट विल बी
एग्जैक्ट हर शेयर ऑफ प्रॉफिट 30,600। लेकिन अमन चूंकि अभी सारा पैसा अमन को पे करना है, अमन उसको देगा। इन दैट सिचुएशन 41,400 विल बी द रिमेनिंग अमाउंट फॉर अमन। तो अमन का शेयर कितना बन रहा है 41,400, और नितिका तो एग्जैक्टली अपना शेयर लेगी अब, दैट इज 30,600। Is that clear? I hope all of you are able to understand these three situations where guarantee partner is being guaranteed, and first situation where partner is being guaranteed by remaining partner and ratio is not given. Second, partner is being guaranteed by remaining partner and ratio is given. Third, partner is guaranteed by any one of the remaining partner. तो हमने ये माना कि अमन ने गारंटी दी है। अगर सिर्फ नितिका ने गारंटी दी होती तो फिर ये अमाउंट 9600 डिडक्ट होता सिर्फ नितिका के अमाउंट यहां से, और फिर अमन का जो अमाउंट है वो 51,000 होता। इज दैट क्लियर? वेल, नाउ वी आर गोइंग टू शिफ्ट आवरसेल्फ टू द नेक्स्ट कंसेप्ट, दैट इज गारंटी बाय अ पार्टनर टू फर्म। अभी तो हम क्या कर रहे थे कि पार्टनर को गारंटी मिली है, अब हम क्या डील करेंगे कि फर्म को पार्टनर ने गारंटी दी है, राइट? अगेन वी विल सी दिस आल्सो विद द हेल्प ऑफ एन एग्जांपल। लेट्स सी दिस क्वेश्चन। आई हैव नॉट चेंज द नेम ऑफ द पार्टनर। फॉर योर कन्वीनियंस, Aman, Nitika and Sejal are three partners sharing profit and loss. Their capitals are 4 lakh, 3 lakh 50,000 and 3 lakh respectively. Here interest on capital is being 10%, पुराने वाला ही है। Interest on drawing of the partner is 12% per annum. We have given interest on drawing with time tag per annum. Commission to Nitika is 10% on net profit. Fourth point, it is our essence. Aman has guaranteed to the firm that he will generate at least 50,000 as fee. अमन ने फर्म को गारंटी दी है कि वो कम से कम 50,000 रुपए की फी जनरेट करेगा। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो उनका 4:3:3। Their firm has generated 3 lakh as profit. Fee generated by Aman is 40,000. अमन ने गारंटी कितने के लिए दी थी कि वो 50,000 रुपया जनरेट करेगा, लेकिन उसने जनरेट कितनी करी? सिर्फ 40,000 रुपया। मीन्स here Aman need to compensate the firm with rupees 10,000. 10,000 रुपया अमन को कंपनसेट करना है। Let's do this question. क्या करना है? पहले सिंपली ट्रांसफर द अमाउंट ऑफ द प्रॉफिट। वी विल ट्रांसफर द अमाउंट ऑफ द प्रॉफिट, दैट इज 3 lakh। नाउ वी विल डील इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इट इज 10%। तीनों पार्टनर को हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी देना है, दैट इज 10%। एंड द अमाउंट विल बी, अमन की कैपिटल 4 लाख रुपया है, 10% 40,000 हो गया। नितिका की कैपिटल 3,50,000 है, 10% 35,000 हो गया। और सेजल की कैपिटल 3 लाख है, तो इट इज 30,000. We have calculated interest on capital. The total amount of the interest is 1,05,000. Okay. Next, interest on drawing. It is 12% per annum. पर annum इंटरेस्ट रेट 12% है। उनकी ड्राइंग कितनी है? 30,000 अमन, 40,000 नितिका और 50,000 सेजल। ये हमें एनुअल ड्राइंग दी गई है और हमें नहीं पता कि उन्होंने ये ड्राइंग कब करी है।
अगर सिचुएशन ये है कि एनुअल ड्राइंग दी गई हो और रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम गिवन है, तो उस सिचुएशन में यू विल अज्यूम दैट ड्राइंग्स आर एवरेजली विदड्रॉन। हम ये मान के चलेंगे कि ये ड्राइंग जो 30,000 रुपया है पार्टनर ने एवरेजली विदड्रॉन करी है, मतलब 30,000 रुपए को 12 से डिवाइड करो, मंथली ड्राइंग बन गई। और हम ये मान के चलेंगे दैट इज बीइंग विदड्रॉन मिडिल डे ऑफ ईच मंथ, मिडिल डे ऑफ ईच मंथ, ये मान के चलेंगे। ठीक है, तो इस सिचुएशन में वी विल कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज फॉर अमन। अमन की ड्राइंग कितनी है? 30,000 रुपया। 12% निकालेंगे तो 3600, 3600, लेकिन हमें एवरेज ले लेना है तो अमाउंट आएगी सिर्फ 6 महीने के लिए निकालना पड़ेगा। उस सिचुएशन में हमें 1800। आपको याद होगा कि मिडिल डे ऑफ ईच मंथ के लिए जो आपका एवरेज पीरियड आता है दैट इज 6 मंथ। 40,000 रुपया ड्राइंग नितिका की है, उस पे निकालेंगे 12%, 2,400। और सेजल की 50,000 है, ड्राइंग इज 50,000, दिस अमाउंट 12% निकालेंगे, इट विल बी 3,000 and the total of drawing is 77,200। ये भी हो गया। नाउ कमीशन टू नितिका इज 10% और नेट प्रॉफिट। नितिका को हमें कमीशन पे करना है, इट इज 10%, 3 लाख रुपया हमारा प्रॉफिट है, इसका 10% 30,000 नितिका को मिलेगा एज कमीशन। नाउ वी कम टू द गारंटी गिवन बाय अमन टू द फर्म। फर्म को गारंटी दी है अमन ने कि वो 50,000 रुपये जनरेट करेगा, जबकि उसने किया कितना जनरेट? 40,000, 10,000 कम जनरेट किया। अगर 10,000 कम किया देन दिस रिमेनिंग 10,000 इज बीइंग कंपनसेटेड बाय अमन टू द फर्म। अगर अमन फर्म को कंपनसेट करेगा तो P&L हिज कैपिटल इज टू बी डेबिटेड, अमन्स कैपिटल अकाउंट गोइंग टू बी डेबिटेड टू P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। जितने कम उसने गारंटी से जनरेट किए हैं दैट अमाउंट इज टू बी शोन इन द क्रेडिट साइड एज अ टाइप ऑफ प्रॉफिट फॉर द फर्म 10,000। राइट, हमने अमन की कैपिटल से उसको ले लिया, 10,000 रुपया प्रॉफिट में डाल दिया। अब ये कुल मिला के फर्म के कैपिटल को, फर्म के प्रॉफिट को बढ़ाएगा। टोटल आपका बन रहा है 3,17,200 और इस हिसाब से आपका डिविजिबल प्रॉफिट कैलकुलेट करेंगे 3,70,200, दैट इज टोटल। डिविजिबल प्रॉफिट आपका आएगा 1,82,200 and this profit is to be distributed among the partners in their profit sharing ratio, and we have profit sharing ratio is in this situation is 433 में इनको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे and the amount will be 72,880 for Aman and 54,660 for Nitika and 54,660 for Sejal. This is the simple question where guarantee by a partner to the firm is being given. Is that clear? अब इसी क्वेश्चन को थोड़ा सा हम चेंज करते हैं और उसमें दोनों गारंटी एक साथ डालते हैं कि जिसमें पार्टनर ने फर्म को गारंटी दे रखी है और फर्म ने पार्टनर को भी गारंटी दे रखी है। लेट्स स्लाइटली मॉडिफाई दिस क्वेश्चन। Let's add a condition in this. It has become our fifth condition.
अमन, पहली गारंटी तो यूं की हुई है कि अमन ने गारंटी दे रखी है कि 50,000 रुपए फीस जनरेट करेगा। सेकंड गारंटी, अमन एंड नितिका हैव गिवन इक्वल गारंटी टू सेजल that her share of profit will not be less than 60,000। यहां अमन और नितिका ने सेजल को गारंटी दे रखी है कि उसका प्रॉफिट शेयर 60,000 रुपए से कम नहीं होगा। हमने ये गारंटी तो डील कर दी। यहां पे अगर दोनों गारंटी एक साथ हैं तो हम पार्टनर ने जो फर्म को गारंटी दे रखी है पहले उसको डील करेंगे। दिस 10,000 डेफिशिएंसी ऑफ फी जनरेटेड बाय अमन, 10,000 कम जनरेट किया था उसने, कहा था 50 के लिए, जनरेट किया 40, तो 10,000 रुपया वो कंपनसेट करेगा फर्म को। अब इस सिचुएशन के बाद ये क्वेश्चन पहले क्वेश्चन जैसा ही बन गया कि हमें एक स्टेटमेंट तैयार करनी है जिसमें सेजल को 60,000 रुपए के प्रॉफिट के लिए कंपनसेट किया जाना है। इज दैट क्लियर? लेट मी एडजस्ट दिस। पहले उनके प्रॉफिट को उनके रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे जो उनका सेट रेशियो है। हियर रेशियो इज 4:3:3। इस रेशियो में ये जो प्रॉफिट आपका आया है इसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे एंड द अमाउंट विल बी एज गिवन 72,880 फॉर अमन and for Nitika 54,660 and the same amount is for Sejal। याद रखना कि हम एक सिचुएशन चेंज करके कर रहे हैं अभी कि हमने मान लिया कि इसी क्वेश्चन में फर्म ने पार्टनर को गारंटी दे रखी है। यहाँ पे सेजल को गारंटी दे रखी है, अमन और नितिका ने इक्वल गारंटी दे रखी है, ठीक है, कि उसका शेयर 60,000 से कम नहीं होगा। यहां हम देख रहे हैं कि अगर रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं तो सेजल का शेयर 54,660 आ रहा है, 60,000 से कम है। तो अब जो डेफिशिएंसी आएगी वो डेफिशिएंसी कंपनसेट करेंगे अमन और नितिका उनके गारंटी रेशियो में। गारंटी रेशियो इक्वल है, ये तो कंफर्म है कि सेजल को 60,000 मिलना चाहिए। डेफिशिएंसी जो बन रही है दैट इज 5,340 this deficiency. It's our balancing figure and that amount is to be compensated by Aman and Nitika in equal ratio as this ratio is given in the question। किस रेशियो में कंपनसेट करेंगे? इक्वल रेशियो में वो उसको कंपनसेट करेंगे। अमन पे करेगा 2,770, दैट अमाउंट इज टू बी कंपनसेटेड बाय अमन। And the same amount, because the ratio is equal, is being compensated by Nitika। In this situation, the share of the Aman will be 70,110 and the share of profit of Nitika will be 51,890 and we will show these amount here in P&L appropriation account। 70,110, this amount is to be shown for Aman and for Nitika it will be 51,890 and obviously for Sejal is exact guaranteed share, it is 60,000। So students, we have clarified guarantee by partner to the firm and guarantee by firm to the partner। Okay, this we comes to an end of this video and final say from my side is that
I hope that you will read these concepts from the book. See all illustration from the book related to guarantee to a partner and guarantee by a partner to the firm. Thanks a lot for seeing this video.